So hey everyone, I hope you are doing great. In the previous video, I have talked about how to calculate powers. Also, we have derived a few formulas by which we can calculate the power generated, right? So there were actually four formulas to calculate the power. So the first formula is P equals to work done by time taken. Very simple, right? And the second formula is we can calculate power equals to V into I. It means the potential difference into I means what? Electric current. And the third formula we have P equals to I square R, where I is the electric current and R is the resistance. And the fourth formula is P equals to V square by R. So these are the four formulas to calculate power. So today we will learn how to calculate the electric bill. Okay, जो हमारे घर पे every month we pay the electric bill. So that bill, how it is calculated. So one of the simplest thing to calculate the electric bill is just go outside, look at the meter. जो हमारे घर पे electric meter लगा होता है. So we will see some numbers 1 2 3 4 5 6, some numbers are there, right? And also you can see that numbers के बगल में लिखा होता है kWh. It means what? Kilowatt hour. So there are some numbers in box like this, कुछ numbers होता है and numbers का बगल में kWh लिखा होता है. So this number is nothing but these numbers are electrical energy consumed. Electrical energy consumed in kilowatt hour, which means commercial unit of electrical energy. Suppose in the previous month your bill was, for example, 222,300. okay, that's just an example. And this month ये हो गया हमारा 222,302. So if you want to calculate the electric power, electric bill in this case, basically क्या करना है, दोनों को माइनस कर दो. So if you minus this one, you will get 2. So in the particular month we have consumed 2 unit of electricity. इसको हम क्या बोलेंगे? 2 यूनिट बोलेंगे. तो जितना भी यूनिट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितना भी कॉस्ट है पर यूनिट का. बेसिकली इट इज 2 रुपीज और 6 रुपीज. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 2 रुपीज to 6 rupees. So if you want to calculate 2 into 2, that is 4 rupees is the electric bill. This is the simplest way by which we can calculate the electric bill. But ये तो हो गया ऊपर ऊपर वाला चीज कि बिल बोर्ड में नंबर्स लिखाते हैं एंड देन हमने कैलकुलेट कर लिया. बट सिंस वी आर स्टडिंग फिजिक्स, वी आर स्टडिंग साइंस, वी विल अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ साइंस कि ये नंबर्स आता है कैसे है. ठीक है, ये नंबर्स तो मीटर पे अपने आप आ जाता है ना, बट ये नंबर्स मीटर पे आता है कैसे, ये कैलकुलेट होता है कैसे. we will learn about that one now. Okay, so we will learn that with the help of few questions. So look at the first question. The first question is saying a bulb is rated 200 volt per 100 watt. मतलब इस बल्ब को 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए टू रन, एंड कितना कंज्यूम करेगा, इसका पावर रेटिंग कितना है, इट्स पावर रेटिंग इज 100 वाट. व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस? नॉट रिलेटेड टू electric bill, but still it's asking what is the resistance. So if you want to calculate the resistance, क्या होगा? If you remember, P equals to V square by R. Here we know the power, it's 100 watt. We know potential difference is 200 watt, and we can calculate R from here simply. So it will be R equals to V square by P हो जाएगा. R ऊपर चला गया, P नीचे आ गया. ठीक है? So now if you put the values, you will get P equals to V मतलब क्या? 200. 200 square means 200 into 200 divided by P is how much? 100. So 0 0 0 0 cut, and you got 400 ohm as the resistance, and that is our answer. But now you might ask, हमने ohms law use क्यों नहीं किया to calculate the resistance? Because now see, with the ohms law there's a problem. Ohms law में क्या है? It's V equals to IR, right? So R equals to क्या हो जाएगा? V by I. Here we know the V, but we don't know I. तो I नहीं है, R नहीं है, हमको R निकालना है, and हमारे पास I भी नहीं है. So we can't use this formula. That's why we have used ये power वाला formula. Because question में देख लेना चाहिए सबसे पहले गिवन क्या क्या होता है. गिवन है हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस, हमको दिया हुआ पावर, तो समथिंग रिलेटेड टू पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उस टाइप का फॉर्मूला जिसमें ये दोनों चीज आ जाए, उस टाइप का कुछ रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है. सो वी हैव टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज फ्रॉम द बिगनिंग. ओम्स लॉ भी याद रखना पड़ेगा एंड पावर का जो हमने 4 फॉर्मूलाज आज रिवाइज किए थे क्लास के स्टार्टिंग में, यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर्मूला एज वेल. ओके, नाउ कमिंग टू आवर मेन पॉइंट. हाँ, क्या पूछा है? अ बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट पर 100 वाट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया. सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electric bill generated for a month if 1 unit is equal to 2 rupees? So इस ये जो ऐसा बल्ब है 200 वोल्ट एंड 100 वाट का जो बल्ब है, ऐसा 5 बल्ब्स है. There are total 5 bulbs and these 5 bulbs burns for 4 hours every day. So what is the electric bill generated? So electric bill निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, कि ये 5 बल्ब्स ने कितना एनर्जी कंज्यूम किया. ठीक है, सो वी हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस I have talked about this formula, so if you don't remember you can just go back to the previous video and check this one. Okay, so here what will be our power? Our power is kitna 100 watt, but remember there are 5 bulbs. There are 5 bulbs, तो क्या करना पड़ेगा? 100 into 5 into टाइम कितना है? 4 hours. ये कितने के लिए बर्न हो रहा है? 4 hours के लिए बर्न हो रहा है, into 4 कर देना है. ठीक है, also there is a problem. This power is in watt, but when we calculate the electrical energy, electrical bill, we have to convert in commercial unit because we are dealing with money. So commercial unit क्या था? किलोवाट आवर, but this 100 is watt, not kilowatt. तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वाट से किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए we have to divide with 1000. So 100 into 5 divided by 1000 into 4 करना पड़ेगा. ठीक है, इज दिस क्लियर? सो नाउ 0 0 कट, ऊपर का नीचे का 2 0 कट, ऊपर क्या मिल गया हमको? इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट 0.5 into 4 which is equals to 4 5 is 20, that is 2. ठीक है, 2 kilowatt hour. It is the electrical energy consumed. Therefore वन डे में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है? वन डे में हमारा 2 किलोवाट आवर का कंज्यूम हो रहा है. इन 30 डेज फॉर अ मंथ बोला ना, व्हाट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल बिल जनरेटेड फॉर अ मंथ? सो 1 मंथ मतलब 30 डेज. देयरफॉर इन 30 डेज कितना होगा? 30 into 2 which is equals to 60 kilowatt hour or 60 यूनिट्स. ठीक है, नाउ 1 मंथ में हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 60 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं. अभी क्या निकालना है? इलेक्ट्रिकल बिल. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 2 रुपीज, तो 60 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा? देयरफॉर बिल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बिल इक्वल्स टू 60 into 2 which is equal to 2 6 are 12 and 120 rupees. This will be your इलेक्ट्रिकल बिल. अगर हमने 5 बल्ब को जलाया है एवरी डे 4 आवर्स के लिए, जिसका रेटिंग है 100 वाट, देन हमारा 1 मंथ में 120 रुपीस का इलेक्ट्रिक बिल आएगा. इज दिस क्लियर? लेट्स डू अनदर क्वेश्चन टू मेक आवर कंसेप्ट मोर क्लियर. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू द क्वेश्चन. क्या बोला है? एन इलेक्ट्रिक हीटर है, सर्दियों का मौसम है. ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर draws a current of 10 ampere from a 220 volt supply. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रिक हीटर है, कितना करंट खींच रहा है? 10 एम्पियर का. कितने में से? 220 वोल्ट का सप्लाई है. 220 वोल्ट का सप्लाई मतलब क्या है? हमारे घर पे जो करंट आ रहा है फ्रॉम द मेन करंट पोस्ट, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट. तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस में से 10 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रिक हीटर. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज? तो उस हीटर को अगर हमने एवरी डे 5 आवर्स के लिए ऑपरेट किया तो
कितना हमारा इलेक्ट्रिक बिल आएगा 1 मंथ में इफ 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 2 रुपीज. वी आर गिवन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू 10 ampere, right? Also given potential difference equals to 220 volt. Anything else is given? No. दिया हुआ है 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 रुपीज. दैट्स ऑल. ठीक है. क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक बिल. तो इलेक्ट्रिक बिल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले यूनिट, कितना यूनिट कंज्यूम हुआ, और यू कैन से कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ. सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, राइट? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. सो टाइम है हमारे पास 5 आवर्स एवरी डे. टाइम है, पावर है, वी डोंट हैव पावर. हमको पावर नहीं दिया हुआ है. सो वी नीड टू कैलकुलेट पावर एट फर्स्ट. तो क्या करेंगे? पावर इक्वल्स टू, if you remember, there was a formula to calculate the power using current and potential difference, that is P equals to V into I. Starting में बताया था आज. So V is what? 220 into 10, which is equals to 2200 watt. किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा. So 2200 divided by 1000, 20 कट, ये 0 एंड ये 0 कट. सो क्या निकलेगा हमारा? 2.2 किलोवाट. किलोवाट आवर नहीं, ठीक है, पावर है. नाउ इफ यू कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज पावर इनटू टाइम. अभी होगा किलोवाट आवर. पावर इज 2.2 इनटू टाइम इज 5. सो कितना होगा? 5 2 जा, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, इस 5 को अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2 10, कैरी 1 था तो 11 हो गया. 11.0 which is equals to 11 किलोवाट आवर. कितना? 1 डे में 11 किलोवाट आवर. ठीक है. सो इन 30 डेज कितना कंज्यूम करेगा? 11 into 30 which is equals to 330 यूनिट, और यू कैन से किलोवाट आवर. मैंने डायरेक्टली यूनिट लिख दिया. ठीक है. देयरफॉर इलेक्ट्रिक बिल इक्वल्स टू 330 इंटू कितना है? 2. पर यूनिट में 2 रुपीज था, विच इज इक्वल्स टू 660 रुपीज. इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल. I hope I didn't go so fast, and I hope these things are clear. So in this way we can calculate electrical bill very easily. ठीक है. तो जो हमने यूनिट निकाला ये वाला 330 वगैरह, तो यही चीज होता है हमारा जो करंट का जो मीटर लगता है हमारे घर के सामने, जो नंबर्स दिखता है वहां पे 1 2 3 4 जो बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, those numbers are these units. ठीक है. So simply what we do is we just multiply this unit with per unit rupees and then we get our electric bill. So it's very simple. सबसे पहले क्या करना है? हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर में निकलेगा. एंड देन जितने भी उसको आता है उसको यूनिट में कन्वर्ट कर देना है, बिकॉज जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स द सेम, बट डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट इट इन किलोवाट आवर. ओके, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन किलोवाट आवर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा. योर आंसर वोंट बी correct. So if you have any doubt, you can comment them below. I'll be glad to answer them. Till then, thank you and goodbye.